Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class. Student, today date is 16 January 2021 and I am teaching you chapter number 12 and name of the chapter is locating places. So, name of the chapter is locating places. So, complete explanation of the chapter I have given you, student. So, in today's video, let's start with the book exercises of the chapter. So, all of you open page number 66. First question is question number A. Tick the correct answer. Question number A. Tick the correct answer. Tick the correct answer. Now see student, direction. The direction that is always shown on the top of the map. The direction, question number first, the direction that is always shown on the top the direction that is always shown on the top of the map. Option number A, south. Option number B, north. Option number C, west. So student, I have already explained you that student, on the top of the map, the direction on the top, for example, this is a map on A4 paper. For example, this is a map on A4 paper. So always the top direction is always, which direction is on the top? That is your north direction. Is it clear? And see, this is bottom. This is for example, this is a map. So the direction which is at the top of the map, that is always north. Direction at the bottom, that is south. Direction which is at the right hand side, that is east. Right
right hand side. Direction which is at right hand side, that is east, and this is the west, and this direction is at the left hand side. Left hand side. So the direction which is on the top of the map, that is always north, and at the bottom it is south, and direction which is at the right hand side, that is east, and the direction which is left hand side, that is west. So the question is the direction that is always shown on the top of the map. So right answer is north. So the right answer is north. North is the direction which is shown on the top of the map. Question number 2. Question number 2. There are certain signs and dash on the there are certain signs and dash on the road that helps us to stay safe. Okay, so first option is marks, second option is direction, third option is symbols. So to understand the language of the map, we must understand what things are given in the index key. ठीक है, सारे मैप के इंडेक्स की होती है, उसमें सब कुछ बताया होता है कि मैप में ये सिंबल यूज है तो इसका क्या मतलब है, अगर ये कलर यूज है तो इसका क्या मतलब है. ऑल द थिंग्स आर गिवन इन दैट. इज इट क्लियर? सो क्वेश्चन इज देयर आर सर्टेन साइंस एंड डैश ऑन द रोड दैट हेल्प अस टू स्टे सेफ. मार्क, direction, symbols. So signs and symbols. Right answer is symbols. So symbols are given in the map, and by seeing this symbol we understand that it stands for what. For example, I already explained you. For example, if this type of a symbol is in the map, then this symbol stands for what? Railway
रेलवे ट्रैक। ठीक है, अगर मैप में आपको ऐसा सिंबल देखने को मिलता है तो इसका मतलब है ये सिंबल किसके लिए स्टैंड करता है बेटा? दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर द रेलवे ट्रैक। ये सिंबल किसके लिए स्टैंड कर रहा है? रेलवे ट्रैक के लिए स्टैंड कर रहा है। इज इट क्लियर? इसी तरह और भी बहुत से सिंबल्स हैं जो कि हम मैप में यूज करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3, a rough drawing of a place is called a dash. A rough drawing of a place is called a dash. So option number A, it is given plan. Option number B, given sketch. Option number C, map. So प्लान मैंने आप लोग को बताया था, ए मैप ऑफ ए, प्लान भी क्या एक मैप है, मैप ऑफ ए रूम और अ हाउस। ठीक है, सो इसे क्या बोलते हैं? प्लान बोलते हैं। या तो किसी रूम का मैप बनाया है, ठीक है, या हाउस का, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हम इसे प्लान बोलते हैं। इज इट क्लियर? व्हाट वी से इट? वी से इट एज ए प्लान। एंड मैप क्या होता है? मैप इज ड्रॉन विद द एग्जैक्ट मेजरमेंट। मैप को जब ड्रॉ करते हैं तो इट इज ड्रॉन ऑन एग्जैक्ट मेजरमेंट। एग्जैक्ट मेजरमेंट बिकॉज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द मैप? मैप आपको किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट मेजरमेंट बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं जा रहे हो तो हाउ मच डिस्टेंस यू हैव टू कवर, दैट थिंग यू विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द मैप। एक तो ये आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट बताता है, एंड अनदर थिंग इट आल्सो टेल यू एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस। प्लेस की क्या एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है बेटा, किसी भी प्लेस की क्या एग्जैक्ट लोकेशन है, इसका भी पता आपको किससे चलता है? मैप से, क्योंकि मैप में डायरेक्शंस दी रहती हैं। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया है, टॉप वाली डायरेक्शन को नॉर्थ बोलते हैं, बॉटम में साउथ है, राइट में ईस्ट है और लेफ्ट हैंड की ओर वेस्ट है। सो इट गिव्स यू द एग्जैक्ट मेजरमेंट एंड आल्सो मैप टेल यू एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द एनी प्लेस। किसी भी प्लेस की लोकेशन, वो प्लेस नॉर्थ में है कि वेस्ट में है, ईस्ट में है, सो ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी बताता है। ठीक है बेटा, नाउ लेट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5,
नंबर क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, this is drawn with exact measurements, this is drawn with exact measurement, okay. Now next question is, this is drawn with the exact measurement and the options are map, sketch and drawing. और इससे पहला वाला क्वेश्चन जो था, ए रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस इज कॉल्ड इट स्केच बोलते हैं उसको, ठीक है। ए रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस इज कॉल्ड इट व्हाट। क्वेश्चन नंबर 3 में शायद मैंने टिक लगाना भूल गया। मैंने आप लोग को बताया कि प्लान मतलब कोई छोटे रूम की प्लान भी हो सकती है, हाउस की भी होती है। इसको भी हम लोग प्लान क्या है, ये भी एक मैप ही है, ठीक है। और फिर मैंने मैप के बारे में बताया कि एग्जैक्ट मेजरमेंट बताता है, एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, लेकिन शायद मैं टिक करना आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में टिक लगाना भूल गया। तो ए रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस इज कॉल्ड इट ए, ऑप्शन नंबर बी होगा स्केच। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज स्केच। लाओ अच्छा मैं लिख ही देता हूं, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे बिकॉज मैंने रब कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, ए रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस, ए रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस, क्या दिया था, मैप, प्लान, स्केच, मैप, प्लान, स्केच, मैप। सो ए रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस इज ए स्केच। ए रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस, किसी भी प्लेस की रफ ड्राइंग को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, स्केच बोलते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, this is drawn with, question 4, this is drawn with exact measurement, this is drawn with exact measurement, option number A map, option number B sketch और ऑप्शन नंबर सी ड्राइंग। तो ये जस्ट मैंने अभी थर्ड क्वेश्चन में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, दिस इज ड्रॉन विद एग्जैक्ट मेजरमेंट। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट से हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, स्केच ड्रॉ करते हैं, नो दिस इज नॉट ए राइट आंसर, क्योंकि स्केच क्या है बेटा, स्केच इज ए रफ ड्राइंग ऑफ एनी थिंग या कोई भी प्लेस। स्केच इज ए रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केच। और ड्राइंग तो कोई भी है जो आप पेपर पे ड्रॉ करते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज मैप। मैप क्या होता है, हाउ वी ड्रॉ ए मैप, वी ड्रॉ ए मैप विद एग्जैक्ट मेजरमेंट एंड मैप आल्सो टेल्स यू अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस। मैप एग्जैक्ट मेजरमेंट बताता है क्योंकि मैप्स आर ड्रॉन ऑन स्केल, ठीक है। और ये किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको बताता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मैप। मैप इज द राइट
answer. So student, now we have, now let's start with question number 5. Number of main direction. Okay, we now rub this question. Question number 4 we have completed. Now see question number 5. ठीक है, नंबर ऑफ मेन डायरेक्शंस, नंबर ऑफ मेन डायरेक्शन. देखो नंबर ऑफ मेन डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर ए दैट इज 5, ऑप्शन नंबर बी दैट इज 2, ऑप्शन नंबर सी दैट इज 4. So question is how many directions are shown in the map. ठीक है, how many directions are shown in the map. So student, I have already explained you the topmost direction of the map is north, at the bottom it is south, right hand side east and left hand side west. So how many directions are there? North, south, east and west. So 1 2 3 4. So right answer is number of main directions are 4. Right answer is number of main directions are 4. Okay. Now next is the question number B. Question number B. Right, true or false? Right, true or false? First question is a lighthouse is a landmark. A lighthouse is a lighthouse is a landmark. Okay. So yes student, this is true. कोस्टल लाइन एरियाज में जहां पे देखो सी होता है, सी में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना बेटा कि पानी के नीचे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं और जो शिप्स कहाँ चलते हैं, सी में और ओशंस में. तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि समुद्र के बीचों बीच बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, लेकिन वो क्या होती हैं, पानी के नीचे डूबी होती हैं, इसलिए वो शिप को विजिबल होगी नहीं, दिखाई नहीं देंगी. तो हो सकता है कि शिप उन चट्टानों से जाके टकरा जाए और इससे एक्सीडेंट हो जाए, शिप पूरा डूब जाए. तो ऐसे एरिया जो कि बहुत ही रॉकी होते हैं, जहाँ पे बहुत चट्टानें होती हैं, सारी जगह नहीं होती हैं, कहीं कहीं जगह, तो ऐसी जगह सी रूट में, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत रॉक्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या लगा दिए जाते हैं, लाइट हाउसेस लगा दिए जाते हैं.
तो दीज लाइट हाउसेज वार्न द शिप, ये लाइट हाउसेस को, क्योंकि इनकी लाइट बहुत दूर से ही दिखाई देने लगती है, ठीक है, तो ये लाइट हाउसेस शिप्स को वार्न करते हैं कि ये एरिया बहुत ही, ये जो रूट है दैट इज वेरी डेंजरस, वो शिप को वार्न कर देते हैं जिससे कि शिप उस रूट से होके नहीं आते हैं, क्योंकि वहां वो रूट्स में क्या है, चट्टाने बड़ी बड़ी, और सबसे बड़ी बात ये पानी के अंदर डूबी हुई है, तो पानी के अंदर अब चट्टाने डूबी हुई तो वो तो दिखेंगी नहीं, तो इसलिए ये क्या होता है, लाइट हाउसेस होते हैं, और इनका काम है शिप को वार्न करना कि दिस रूट इज नॉट सेफ फॉर द शिप। सो क्वेश्चन इज, ए लाइट हाउस इज अ लैंडमार्क, यस दिस इज ट्रू, इज इट क्लियर, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है, द सन राइजेस इन द वेस्ट, the sun rises, the sun rises in the west, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है बेटा, द सन राइजेस इन द वेस्ट, सो दिस इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि सन कहां राइज करता है बेटा, ईस्ट में, और सन सेट कहां करता है, दैट इज वेस्ट, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है द सन राइजेस इन द वेस्ट, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, गुजरात इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, गुजरात क्या है, गुजरात इज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, सो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, गुजरात इज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। जब आप पॉलिटिकल मैप देखोगे बेटा, जो कि आपको पेज नंबर 64 पे दिया है, पॉलिटिकल मैप ऑफ आवर कंट्री दैट इज इंडिया, अपनी कंट्री का पॉलिटिकल मैप दिया है, ठीक है। जब आप बेटा उस पॉलिटिकल मैप को ऑब्जर्व करोगे, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि मैप में 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ टॉप पे, बॉटम पे साउथ, राइट में ईस्ट एंड लेफ्ट में वेस्ट। तो अब आप लोग अपने मैप के लेफ्ट में देखो, गुजरात आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, यू कैन सी हियर, ये देखो, ये डायरेक्शन लेफ्ट हैंड की ओर है, तो गुजरात किधर है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड है, तो गुजरात किस डायरेक्शन में है, वेस्ट में, गुजरात किधर है, वेस्ट में, और यहां क्वेश्चन में कह रहा है गुजरात इज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, इसलिए दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, दैट इज द रीजन दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। Fourth, the direction between north and east, east is called it the north between south and east, the direction between south and east is called it the north, is called it the south
वेस्ट। सी, अब देखो द डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, साउथ एंड ईस्ट के बीच में द डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड ईस्ट क्या होगी, साउथ ईस्ट होगी। और यहां क्या दिया है, इज कॉल्ड द साउथ वेस्ट। सो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। इनके बीच में डायरेक्शन होगी साउथ एंड ईस्ट और यहां क्या दिया है, साउथ वेस्ट। सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। थैंक यू स्टूडेंट।